السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہریش زہیر، میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں مہوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات ہوگی پاک فوج کی نئی قیادت، معاملات خوش اسلوبی سے طے، کپتان کا تعیناتی میں مثبت کردار، حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں عروج پر، قافلے کہاں کہاں سے روانہ، مدعی سامنے آئیں، اور فٹ بال کی جنگ۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف مقرر ہو گئے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن گئے۔ صدر مملکت عارف الوی نے وزیر اعظم ہاؤس سے بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم نے دونوں کے ناموں کی سمری صدر مملکت کو بھیجی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو گئے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، پاک فوج کے نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نئے سپہ سالار بن گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مقرر۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی جانب سے بھیجے جانے والی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تقرری کی سمری کو منظور کر لیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائز پر منظوری دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو گئے۔ صدر کا سمری پر دستخط کرنا خوش آئند ہے۔ آج جو صبح جو ہم نے ایڈوائس بھیجی تھی اس پہ عمل ہو گیا ہے، اس پہ سائن کر دیے ہیں پریزیڈنٹ صاحب نے۔ یہ بھی ایک اچھا شگون ہے، خوش اسلوبی سے سیٹل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے بند کمرے میں وزراء سے مشاورت کی۔ کابینہ نے بھی معاملے پر وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے سمری صدر مملکت کو بھیجی گئی۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت نے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو نئی تعیناتیوں پر مبارکباد دی۔ آرمی چیف صدر عارف الوی کی ملاقات میں افواج پاکستان کے پیشہ وارانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر پاک فوج کے نئے آرمی چیف بن گئے۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کی۔ صدر مملکت نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ جنرل عاصم منیر نے صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں فوج پاکستان کے پیشہ وارانہ امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ بعد ازاں آرمی چیف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پہ مبارکباد پیش کی۔ صدر عارف الوی سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد کی بھی ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت نے جنرل ساحر شمشاد کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل ساحر شمشاد نے پاک فوج کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ بعد ازاں وزیر اعظم سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد کو نئی تعیناتی پر مبارکباد دی۔ نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کے لیے وزیر اعظم کی صدر عارف الوی کو صدر عارف الوی نے عمران خان سے لاہور میں ملاقات کی۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ صدر اور عمران خان کے درمیان 45 منٹ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں تمام پہلوؤں سے تعیناتی کا جائزہ لیا گیا۔ صدر مملکت نے عمران خان کی مشاورت سے دستخط کیے۔ انہوں نے یہ اقدام عمران خان کی مکمل حمایت اور قانونی پہلوؤں کے جائزے کے بعد دیا ہے۔ فواد چودھری کا رد عمل میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صدر مملکت کا اعلامیہ سامنے آ چکا ہے۔ نئے آرمی چیف جنرل اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا موقف سب کے سامنے ہے۔ ہم نے ہمیشہ ملکی سلامتی اور اداروں کے استحکام کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ مملکت کا اعلامیہ سامنے آ چکا ہے۔ نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا موقف شروع دن سے ہم نے ملک کی سلامتی اور اداروں کے استحکام کے لیے ہمیشہ اقدامات اٹھائے ہیں، اور آج صدر مملکت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ جو اقدام لیا ہے وہ عمران خان صاحب کی مکمل حمایت اور جو آئینی پروویژنز ہیں ان کے جائزے کے بعد صدر مملکت نے یہ اقدام لیا ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں
नए आर्मी चीफ को और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को। फौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो मुल्क में आईनी हकूक की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे और अवाम को नए इंतखाबात के जरिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक तस्लीम किया जाएगा। जो गुज़श्ता 8 महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी हकूक सलब किए गए, हम नई क़यादत से ये तवक्को करते हैं कि ये हकूक सलब नहीं किए जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर ने मंगला में ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट किया और फौज में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। ISI के सरबराह भी रहे। कोर कमांडर गुजरांवाला और क्वार्टर मास्टर जनरल की जिम्मेदारियां भी निभाईं। जनरल आसिम मुनीर मंगला में ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुए और फौज में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उन्होंने जनरल बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौज की कमान संभाली। उन्हें 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम वो मुख्तसर अरसे के लिए इस ओहदे पर रहे। ISI के सरबराह से तबादला करके कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया। 2 साल बाद GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए। इस वक्त भी इसी ओहदे पर काम कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने मिलिट्री एकेडमी काकूल से एजाजी शमशीर भी हासिल की। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ होंगे जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स से नहीं बल्कि OTS कमीशन्ड ऑफिसर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गुज़श्ता 7 बरस के दौरान अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। इस वक्त वो 10 कोर जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है की कमान कर रहे हैं। शमशाद मिर्जा फौज में बहुत मुतासिर कुन करियर, गुज़िश्ता 7 बरस के दौरान अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। इस वक्त 10 कोर जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है की कमान कर रहे हैं। बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जनरल साहिर शमशाद ने मीडिया की तवज्जो हासिल किए रखी। अपनी इस हैसियत में वो GHQ में जनरल राहिल शरीफ की कोर टीम का हिस्सा थे जिसने शुमाली वज़ीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में भी काम करते रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा किया था। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने DI खान की डिवीजन की कमान की जो उस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशंस की निगरानी कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया। इस हैसियत में वो खारजा अमूर और कौमी सलामती से मुतालिक अहम फैसला साजी में शामिल रहे। 2021 में चीनी वजीर खारजा विंग जी के साथ स्ट्रेटेजिक बातचीत में भी वो साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौम को हकीकी आजादी मार्च में शिरकत करने की दावत दी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपने वीडियो पैगाम में क्या कहना था आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, 26 नवंबर हफ्ते को पिंडी में 1 बजे मैं चाहता हूं कि आप सब शिरकत करें मेरी हकीकी आज़ादी की मार्च पे। हकीकी आज़ादी एक कौम को तब मिलती है जिस कौम में इंसाफ होता है। इंसाफ होता है तो हकूक होते हैं, हकूक होते हैं तो एक कौम आज़ाद होती है और आज़ाद कौम ही खुशहाल होती है। तो हम सब इस मार्च में शिरकत करेंगे सारे मुल्क को पैगाम देने के लिए कि ये कौम अब तब तक चुप करके नहीं बैठेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होते। मैं इस हालत के अंदर आपके लिए आ रहा हूं और आपने हफ्ते को पिंडी में मेरे लिए पहुंचना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26 नवंबर से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए रावलपिंडी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इकबाल पार्क में लॉन्ग मार्च के शुरका के लिए खैमे नस्ब किए जा रहे हैं। रावलपिंडी PTI रहनुमाओं और कारकुनों का कहना है पिंडी तैयार है, आने वाले मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल करेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां। मरी रोड इकबाल पार्क में शुरका के लिए खैमा बस्ती पर काम जारी है। 40,000 से जायद शुरका के लिए खैमों में रहने, खाने पीने और वॉशरूम्स तैयार किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और कारकुनान का कहना है कि रावलपिंडी तैयार है। पाकिस्तान भर से आने वाले शुरका का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हमने 40,000 टेंट लगाए हैं जिसमें 10,000 बाथरूम है। खाने का, पीने का, रहने का, कंबल, रजाइयाँ, जो कुछ भी है हर चीज़ मिल रही है उन लोगों को। मैं ये समझती हूँ कि हमारे लोग बहुत बड़े दिल के हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में ठहरा रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन को, और जो मर्द रह जाएंगे वो टेंट पे चले जाएंगे और वहाँ पे रह रहे होंगे। कारकुनान का मजीद कहना है कि शुरका के खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम होगा। अगर PTI के मुतालबात तस्लीम ना हुए तो जब तक इमरान खान कहेंगे धरना देंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान की कॉल पर हकीकी आज़ादी मार्च के लिए हतमी मनसूबाबंदी का ऐलान कर दिया। सूबे के मुख्तलिफ अजला से काफिले 26 नवंबर को 12:30 बजे पिंडी में दाखिल हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर परवेज़ खटक की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पिशावर, खैबर और मोहम्मद के काफिले पिशावर टोल प्लाजा से सुबह 9 बजे रवाना होंगे। बलोचिस्तान में कोयटा और जनूबी पंजाब में मुल्तान से काफिले जुमे से रवाना होंगे। तहरीक इंसाफ कराची का पहला काफिला ट्रेन से रावलपिंडी के लिए रवाना हुआ। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार का कहना था, लॉन्ग मार्च फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। हम इमरान खान की क़यादत में हक लेकर रहेंगे। खान की कॉल पर हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियों के आखिरी मराहिल। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने हतमी मनसूबाबंदी का ऐलान कर दिया। सूबे के मुख्तलिफ अजला से काफिले 26 नवंबर को 12:30 बजे पिंडी में दाखिल हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर परवेज खटक की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पिशावर, खैबर और मेहमन के काफिले पिशावर टूल प्लाजा से सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जिला चारसदा से काफिले की चारसदा टूल प्लाजा से सुबह 9:30 बजे रवानगी होगी। मर्दान का काफिला मर्दान टूल प्लाजा से, मालाकंड से काफिले कर्नल शेर खान टूल प्लाजा से, सवाबी समेत डिस्ट्रिक्ट नौशेरा का काफिला सवाबी रेस्ट एरिया से रवाना होगा। हजारा रीजन से काफिलों की रवानगी मोटरवे से होगी। PTI जनूबी पंजाब, मुल्तान समेत 11 अजला से काफिले जुमे को पिंडी रवाना होंगे। 800 बसों पर 40,000 से जायद कारकुनान 3 दिन का राशन साथ लेकर जा रहे हैं। जनूबी पंजाब से मेरे एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 800 के करीब बसेस और तकरीबन 40,000 लोग, मेरे रफन अल्लाह की पूरी उम्मीद है 40,000 लोग, और ये मैं नहीं लेके जा रहा या हम नहीं लेके जा रहे, लोग अपने शौक से जा रहे हैं अपने लीडर की कॉल के ऊपर, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शो होगा। कराची से पहला काफिला बजरिया ट्रेन रवाना होगा। रहनुमाओं और कारकुनान का कहना था अपने मुतालबात मनवा कर ही वापस लौटेंगे। साउथ रीजन के काफिले सूबाई सेक्रेटरी जनरल अली अमीन खान गंडापुर की सरबराही में बरास्ता CPAC मार्च में शिरकत के लिए पहुँचेंगे। बलूचिस्तान से हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए काफिले बाद नमाज जुमा कोयटा से रवाना होंगे। कचलाक, खानुजई, किला सैफुल्ला और जोब से छोटे बड़े काफिले मरकजी काफिले में शामिल होंगे। और नाज़रीन, लॉन्ग मार्च से पहले रावलपिंडी तैयार हो चुका है। PTI कारकुनान ने मरी रोड, शमसाबाद एहतजाजी कैंप से फैजाबाद तक मशल बरदार रैली निकाली और भरपूर नारेबाजी की। तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता खान से। अल्लाह दित्ता, ओवर टू यू। की हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मार्च और रैलियां जारी हैं। आज भी शमसाबाद मरी रोड के ऊपर एहतजाजी रैली, मिशल बरदार रैली निकाली गई। इस वक्त शुरका भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज रैलियां जारी रखे हुए, खान साहब को किस तरह वेलकम करेंगे? जी, आज अभी हमारी मशल बरदार रैली देख रहे हैं। ख़वातीन की रैली है और ख़वातीन इतनी चार्ज हैं, इतना जज्बा है इनमें, और इसी जज्बे के साथ ये खान साहब को यहाँ पे मरी रोड पे वेलकम करेंगी इंशाल्लाह। कारकुनों का कहना है कि ये 26 तारीख के हवाले से भरपूर खान साहब आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं।
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।